ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨਹ ਜਮ। ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਉਰ ਹਰੀ ਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਦੱਖਣੇ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਡਿਠੀ ਹੱਬ ਟੰਡੋਲ ਹਿਕਸ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਓ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਮੁਖ ਲਗ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਏ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਸਕ ਆਸਾ ਬਾਹਰਾ ਮੂੰਹ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ। ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਹਿਕ ਤੂੰ ਹਉ ਬਲ 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 ਗਈ ਆਸ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁਖ ਵਿਣ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਦ। ਬਾਝ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਤੀਰੋਦ। ਪੌੜੀ ਤਟ ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦੇਵਾਲਿਆ ਕੇਦਾਰ ਮਥੁਰਾ ਕਾਸ਼ੀ। ਕੋਟ 33 ਦੇਵਤੇ ਸਣ ਇੰਦਰ ਜਾਸੀ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਚਾਰ ਖਟ ਦਰਸ਼ ਸਮਾਸੀ। ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਵਤੇ ਭੀ ਜਾਸੀ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਸਭ ਕਾਲੈ ਵਾਸੀ। ਮਨ ਜੋਗੀ ਦਿਗੰਬਰਾ ਜੰਮੈ ਸਣ ਜਾਸੀ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ ਸਭ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸੀ। ਥਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸੇਵਕ
थिर होसी थिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां वडियाइयां दे मालक धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार सतगुरां दी बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा जो शब्द आप जी ने गुरु के वजीर पासों सरवण किया है। मारू की वार विच मारू दखने महला पंजवां दे गुरु अर्जन दे पिता महाराज दे पावन मुख तो उचारण होया। दखनी बोली दे विच ये उचारिया होया शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1100 अंग ते दर्ज है।
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, 3 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਬਲਾਖੀ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਫਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛਕਾਏ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉਠੀ ਅਦਕਾਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਤਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਦੇ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਮਕਾ ਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਚੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1-2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ,
इस गुरुद्वारे जाओगे तुहाडे बच्चे का विआह हो जाएगा, आ पाठ करोगे तुहाडे काके का पासपोर्ट बन जाएगा। इत्थों तक गुरबाणी दीयां पोथियां ते विधियां लिख दित्तियां गईयां। हुण इहनूं की कहीए भी असीं तरक्की कीती है, पदार्थक तौर ते तरक्की कीती है, पर अध्यात्मक तौर ते असीं 2-4 स्टैप थल्ले गए हाँ, उपर नहीं उठे। धर्म सुरती दा पैंडा सी, शरीर दे तल ते किते पहुंचण वाला ये रस्ता नहीं सी, नहीं तो मीरा ने महंगियां गड्डियां लैके कदों दे पहुंच जाना सी। और एक सच है, हिंदुस्तान दे विच जां कुछ होर मुल्कां दे विच असीं मन सकते हैं कि उत्थे इतिहासक गुरुद्वारे ने, गुरु साहिबाना ने चरण पाए ने। इस करके सिख उस पवित्र धरती दी मिट्टी अपने मत्थे नूं लाउण वास्ते जांदा है, उत्थों दी चरण धूड़ अपने मस्तक नूं लाउणी चाहुंदा है। पर इन्हां समुद्रां तो पार जिहड़े गुरुद्वारा साहिबान बने वो इस आशे नाल नहीं बने सन कि भाई जिहड़ा काम वपार दी दुनिया विच, विहार दी दुनिया विच साडा नहीं हो रहा, एक गुरुद्वारा बना लईए उत्थों हो जाया करेगा। फॉरन दे विच जिन्ने गुरुद्वारे बने ने, ठीक है, अज उत्थे लोग अपनी चौधरदारी पिछे भी गुरुद्वारा बना लेंदे ने, अपनी जातिवाद दी हौमे विच भी गुरुद्वारा बना लेंदे ने। पर जदों पहला जाके सिखां ने उत्थे गुरुद्वारे बनाए, अज तो 100 साल पहला, अज तो 70-80 साल पहला, उदों इहो जी बीमारी, इहो जिहा कोड़ उत्थे नहीं सी। उत्थे सिर्फ इको ही गल सीगी कि दिन रात असी काम धंधे विच भज्जे फिरदे हां, पर एक दिन ते ऐसा नियत करिए कि जिस दिन असी बैठ के गुरु गुरु करया करिए, उस गुरु का शुकराना करिए भी भावें औखे होके असी 7 समुंदर पार करके इत्थे आए हैं, पर यह भी तो उहदी किरपा नाल ही होया है ना सारा कुछ। अज भी जदों नवीं कलोनी दे विच नवां गुरुद्वारा बनदा है, बनदा इसी आशे नाल है भी जे सच्चे पातशाह ने सानू प्लाट दिते ने तो एक प्लाट गुरुद्वारे का होना चाहिए। जे सतगुरु ने साडे महल बनाए ने तो इत्थे सतगुरां दे भी सुंदर मंदिर होने चाहिए ने। हौली हौली वो फिर प्रबंधकी चौधरदारी का झगड़े का थां बना लीए, वो साडियां अपनियां माड़ियां सोचां ने। फिर असी उथे कोई इस तरह की डील करनी शुरू कर दईए कि बाबा जे तू मेरा आ काम करेगा मैं इन्ने दिन आवांगा, जे तू मेरा आ काम करेगा मैं तेरा आ करांगा। ये तो बिजनेस डील है, दुनिया में चलती रहती है, असी भी शुरू कर ली। पर जिस दिन कलोनी विच गुरुद्वारा बनना शुरू होया सी, उस दिन इहो जी सोच, इहो जी भावना किते भी नहीं सी। समा पाके दुनिया का प्रभाव कबूलिया, असी इत्थे पहुंच गए। सतगुरु की बाणी समझाउंदी है, पौड़ी है धरत आकाश पताल है, चंद सूर बिनासी। धरती है, आकाश है, इस धरती तो होर थले जिहड़ी दुनिया नूं असी पताल कहने आ, चंद्रमा है, सूरज है, पर भाई ये सारियां चीज़ां बिन संहार ने। ये धरती भी बिन सजाएगी, चंद्रमा सूरज भी बिन सजाएगा। ये पताल भी सदा रहन वाला नहीं, ये आकाश भी सदा रहन वाला नहीं। बादशाह शाह उमराव खान ढाहे डेरे जासी,
ये वड्डे वड्डे बादशाह अमीर जगीरदार लोग जेड़े ने ये सब अपनियां महल माड़ियां छड्ड के एक दिन चले जाणगे। इहदे विचों कुछ भी स्थिर नहीं, सच नहीं, सदैव नहीं, अटल नहीं, हमेशा वास्ते कुछ भी नहीं है। रंग तुंग गरीब मस्त सब लोग सिदासी। इसी तरह ये कंगाल लोग भी, अमीर लोग भी, गरीब लोग भी, माया दे विच मस्त लोग भी, भाई इन्हां ने भी सारियां ने दुनिया छड्ड के चले जाना है। काजी शेख मशायका सबे उठ जासी। फिर ये जिहड़े धर्म नाल संबंधित लोग ने, धार्मिक आगू ने, काजी ने, शेख ने, इन्हां ने भी एक दिन संसार तो चले जाना है। पीर पैगंबर औलिए को थिर ना रहा सी। जिहड़े पीर पैगंबर अवतार नबी आए सदा वास्ते तो वह भी नहीं रहे। हुण उन्हां दी मौत दे कारण असी जो मर्जी कहीए कि हजरत मुहम्मद साहब की मौत इदा हुई, श्री रामचंद्र जी की मौत इदा हुई, श्री कृष्ण जी की मौत इदा हुई। ईवन असी अपने सतगुरां दे परलोक गमन की व्याख्या जिस मर्जी रूप विच करिए, पर सच ये है कि जहर पीर जगत गुरु कल तारन आए गुरु नानक दे पिता महाराज भी एक दिन ज्योति जोत समाए ने। और वो साडे वास्ते इस तो वड्डे होर मीर पत्थर की हो सकते हैं, इस तो वड्डियां साडे वास्ते होर उदाहरणा की हो सकदियां ने कि जिन्हां नूं असी अपने दीन दुनिया दे पातशाह मनदे हां, शरीरक तौर ते वो संसार तो चले गए, वो साडे विच सदा वास्ते नहीं रहे। उन्हां दी जोत, उन्हां दी जुगत, उन्हां दी बाणी अज भी साडे कोल धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे रूप विच प्राप्त है। रोजा बांग निवाज कतेब विण बुझे सब जासी। ये जड़ियां धार्मिक मर्यादा ने, रोजे रखने ने, बांगा देनियां ने, नमाजा पढ़नियां ने, धर्म ग्रंथ पढ़ने ने, अगर इन्हां दी सार नूं आपां नहीं समझदे तो भाई इन्हां दे पठन पाठन करने वालियां ने भी संसार तो चले जाना है। 184 मेदनी सब आवे जासी। ये थोड़े जे ना नहीं है, 84 लाख जूनियां मनिया गई ने। ये सब का ही आवागमन है, सब आउण जाण वाला परमात्मा ने एक वर्तारा जिहड़ा है वो बन्निया होया है, मिथ्या होया है। उहदे विच ही असी सारे संसार दे जीव घूमदे हां। निहचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अबनाशी। सदा वास्ते कौन है? वो एक रब है। जा रब है, जा रब दा बंदा है भाई, क्योंकि नाम रहे हो साधु रहे हो गुर गोबिंद। कहो नानक यह जगत में किन जपे हो गुरमंत। वो कौन है जिन्हें गुरु दे मंत्र दा जीवन विच जाप कीता है? रब रवेगा, रब दा नाम जपण वाला बंदा भी रवेगा भाई। जदों इस सारे सच नूं समझ लिया, फिर जाके ये गल जिहड़ी सी हिरदे रूपी घर दे विच स्पष्ट हो गई कि हे परमात्मा तू मेरे ते कृपा कर। डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोई। मैं तो सारी दुनिया फिर के वेख ली है। आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए। परमात्मा तू मैनू अपने दर्शन दे। असी भी सवेरे गुरुद्वारे आने आ, भाव इन्ना ही है कि गुरु दे दीदार कीते जान।
पर पता नहीं वो गल सारी कित्थों किवें असीं घुमा लई है कि किहड़े गुरुद्वारे किन्ने दिन जाना चाहिए, किहड़ा पाठ किन्ने दिन करना चाहिए। सिखा गुरुद्वारे तेरी लाइफ लाइन सी, गुरुद्वारियां तो तैनूं जीवन दान प्राप्त हुंदा सी। एक वेला सी कि तैनूं गुरु कहण तो रोकिया जांदा सी, ईवन गुड़ नूं गुड़ कहण तो भी मना कर दिता गया भी इन्हां नूं गुरु चेते आ जाएगा। तेरे गुरुद्वारियां नूं खत्म करन दे यतन कीते गए, इत्थों तक कि दरबार साहब का सरोवर भी पूर दिता गया। अबदाली ने किहड़ा माड़ा कर्म नहीं किया, पर साडे पुरखियां दा जिहड़ा पुरुषार्थ सी वो इहो ही सी, असी रहीए ना रहीए, साडे घर रहन ना रहन, साडे बच्चे परिवार रहन ना रहन, पर ये झंडे ते बुंगे ये जुगो जुग अटल रहने चाहिए ने। अज दा दिन पंथ दे विच एक बहुत वड्डी पीड़ा प्रगट करदा है। जदों सानू ननकाणा साहब दे साके दी याद आउंदी है, असी अरदास विच रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, बंद बंद भी कट्टे गए, खोपरियां भी उतारियां गईयां, चरखड़ियां ते भी चढ़ाए गए। पर यह सारा कुछ तो साडे पुरखियां दे बजुर्गों के सामने वापरे है। अमेरिका तो एक बच्चा मैनू फोन करता, हो सकता बच्चा मैं कह रहा इस करके भी वो सरदार करतार सिंह झब्बर का पुत्र है, हो सकता मेरे तो उम्र च वड्डा होवे। वो मैनू अपनी दास्तां सुनाउणी चाहुंदा सी कि मेरे दादा जी करतार सिंह झब्बर 1962 विच पूरे होए। जो ननकाणा साहब दे विच होया वापरिया, क्योंकि वो लोग विटनेस सन, वो उस मूवमेंट का एक हिस्सा सन। मेरा ख्याल शायद कम्युनिकेशन या टाइम का अगा पिछा ना हुंदा ते उन्हां शहीदां दे विच एक शहीद सरदार करतार सिंह झब्बर भी हुंदे, लक्ष्मण सिंह होरां दे नाल। ये साडे बजुर्ग अज इस गल दे गवाह ने कि गल्लां ते साडे सामने आ, साडीआं अखां दे सामने वापरियां ने। 1919 दे विच जलियांवाले बाग दा साका हुंदा है, सैकड़े लोग मार दिते जांदे ने। ये जिहड़ी गुरुद्वारा सुधार लहर शुरू होंदी है, जिहड़ी सिंह सभा लहर शुरू होंदी है, जिहड़ी अकाली लहर शुरू होंदी है, हुण सानू शायद इस गल का कदे एहसास भी नहीं होएगा कि अज गुरु घर दे जदों प्रबंध दीयां सेवावां सच्चे पातशाह ने साडी झोली विच पाईयां ने, और अज भी मेरा पंथ गुरु के सामने खलो के रोज अरदास करदा है कि श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, उन्हां दी सेवा संभाल तो पंथ विछड़िया होया है। सच्चे पातशाह किरपा कर, उन्हां दी सेवा संभाल साडी झोली विच पा, अपने खालसा जी नूं बख्शो। ये सेवा संभाल एवें प्राप्त नहीं हुई। साडे बजुर्ग जंड नाल बन के साड़े गए ने, उन्हां नूं टकुआं दे नाल, गंडासियां दे नाल, दातरां दे नाल
छोटा छोटा करके जिवें कीमा करीदा ना, इदा टुक टुक के मारिया गया है, शहीद किया गया है। और करने वाले कौन सन? जिहड़े उत्थे बैठे सन पहले प्रबंधक, महंत नरैणू वर्गे। देखो, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। शुरुआत तो बड़ी वधिया सी कि जदों सिख जंगलों में चले गए तो इन्हां पवित्र स्थानां दी सेवा कौन करे? फिर उदासी निर्मले साधु आए। उन्हां वड्डियां पुरखियां नूं वड्डी नमस्कार है जिन्हां ने इन्हां स्थानां दी पवित्रता नूं बना के रखिया। पर उन्हां नूं की कहीए जिन्हां ने इन्हां स्थानां दे विच धीआं बच्चियां दे नाल बद फैलियां शुरू कर दित्तियां। एवें नहीं ये सारा कुछ होया। किन्ना वड्डा राज रहा महाराजा रणजीत सिंह दे समय। उस वेले इस गल वल बहुता ध्यान क्यों नहीं दिता गया? ये सारियां जायदादां उदों ही लगियां ने। हजारां हजारां एकड़ जमीन एक एक गुरुद्वारा साहब नाल महाराजा रणजीत सिंह ने लाई है। ननकाना साहब ते अपनी घोड़ी दे दी सी पुजारी साहब नूं, आख्या सी जाओ जिथों तक फेर आओगे जमीन बाबे नानक दी है। अज भी शायद 5000 एकड़ के करीब बनती है, अज भी स्टिल हुण भी है। पर उस वेले इन्हां दा जीवन बुरा नहीं सी, भैड़ा नहीं सी। इसे करके पंथ ने, कौम ने कोई ना बहुता ध्यान दिता, ना बहुती दखलअंदाजी की। क्योंकि धार्मिक जिहड़ी मर्यादा है ना, इहदे प्रति मैं अज भी बेनती करा, बहुत सुचेत होने की लोड़ है। मैं तो कदे अज भी किसी दूसरे खेत्र में विचरण वाले बंदे नाल गल करा तो मैं उन्होंने बेनती करदा ना भी जिथे तुसी फिरदे हो ना, ये खुली दुनिया है। पर जदों धर्म के प्रति तुसी बोलना है, जदों गुरबाणी के प्रति तुसी बोलना है, जदों गुरु घर की मर्यादा के प्रति गल करनी, तो चेता रखना भी इन्हां तारां दे विच 440 वोल्ट करंट है। जे किते भी स्पार्क होया तो बचना कुछ नहीं है। तुसी कदे गुरबाणी की पंक्ति गलत पढ़ के वेख लो, कौन बख्शेगा थानू? हुण तुसी गुरुद्वारे की स्टेज ते खलो के संबोधन होवो, साध संगत जी फतेह बुलाओ ते अपने हाथ पिछे कर लो, वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। अगले ने उत्तर नहीं देना स्टेज तो भी जे तेनों इन्ना ही स्टेज ते चढ़ के फतेह बुलाउण दा चाहे तो भी हाथ तू जोड़ने सी कि असीं जोड़ने सी? और एक सच है, असी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर असी अपने धर्म के प्रति कुछ भी बर्दाश्त करने वास्ते तैयार नहीं कि कोई साडे धर्म स्थान की अवग्या करे, कोई साडे धर्म की अवग्या करे, कोई साडे धर्म के संस्कारां की अवग्या करे, कोई धार्मिक चिन्हां की अवग्या करे, कोई साडे धर्म मंदिरां की, गुरुद्वारियां की कोई अवग्या करे, कोई सतगुरु जी के स्वरूप की बाणी की कोई लिखण बोलण विच अवग्या करे। असी इस नूं प्रवान नहीं करांगे और पुरखियां साडियां ने, बजुर्गां ने कीता भी नहीं है। जो तकरीबन जे आप 1708 तो शुरू होइए 16 तक आ जाइए बाबा बंदा बहादुर दे राज तक, उस तो अगे महाराजा रणजीत सिंह दा राज भी आउंदा है 1839 तक। 10 साल होर लगते ने, फिर अगों अंग्रेजों का राज आ जाता है। तकरीबन 1850 तो लैके 1921 तक ये फिर 70 साल बनते हैं।
ये बड़ा लंबा समय है जिथे असी ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਬਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ जोड़ दी। पर जदों गुरु घरां दा चढ़त चढ़ावा जिहड़ा सी जां गुरु घर दीयां जायदादां जिहड़ियां सी, गुरु घर दे विच आउण वाला जिहड़ा पूजा दा धान सी, जदों उसने उन्हां दी बुद्धि नूं भ्रिष्ट कीता, उन्हां ने इन्हां अस्थानां ते बह के बुरे तो बुरे कर्म करने शुरू कीते। ते फिर खालसे नूं उन्हां अस्थानां नूं आजाद कराउणा पिया, मोर्चे लाने पे। और तुसी हैरान होवोगे उस वेले अंग्रेजां दी उन्हां नूं सरपरस्ती प्राप्त सी। जो ननकाना साहब दे विच होया इस तरह दे शायद सुनदे हां असीं हुण भी, पर उस वेले दी शरेआम कीता गया भी जिहड़े जेलां विच बंद गुंडे सन ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ के दे दिते गए 2 नंबर ची, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਾ करवा के मुड़ के लिया के फिर जेलों च बंद कर देते भी नहीं जी वो तो बाहर है ही नहीं सीगे जी। अज सुचेत होने की लोड़ है। ये साका हर साल साडे अंदर एक पीड़ा दा एहसास कराउंदा है कि ये गुरुद्वारा प्रबंध सानू कितना मुश्किल मिले है, किन्नियां शहादतां तो बाद मिले है, किन्नियां कुर्बानियां तो बाद मिले है। और इहदी शक्ति नू, गुरुद्वारा अस्थानां दी शक्ति नू अंग्रेज जानदा सी। वो नहीं सी चाहुंदा कि कदे भी ये सिखां कोल वापस चला जाए। महात्मा गांधी वर्गे नूं कहना पिया सी कि जदों चाबियां मिल गई आख्या ये हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग जिहड़ी है सिखो तुहानूं वधाई होवे तुसीं जित लई है। ये गल कहनी पई सी। बड़ी वड्डी कुर्बानी सी, बड़ा वड्डा बलिदान सी गुरसिखां दा, साडे पुरखियां दा, साडे बजुर्गां दा। अज जिहड़े वोटां दे राही आ जांदे ने उन्हां नूं इस गल दी समझ होनी चाहिए है कि यह प्रबंध इदां है नहीं सी जिद्दां अज सानूं प्राप्त होया है। ये बड़ियां कुर्बानियां शहादतां तो बाद ये अस्थानां दी सेवा सानूं मिली है। और ये अस्थान सिख दी लाइफ लाइन ने। इथों सानू सोझी भी मिलनी है, इथों सानू ज्ञान भी मिलना है, इथों सानू सिद्धांत भी मिलना है, इथों मर्यादा भी मिलनी है, सारियां शक्तियां भी सानू इथों ही मिलनियां ने। जां इहनूं दूजे शब्दां विच कहीए ते गुरुद्वारा एक साडी आजाद प्रभु सत्ता दा एक केंद्र है। इत्थे किसी दी कोई गुलामी नहीं है। तुसीं वेख ही लिया जे 2 करोड़ रुपया जो लिखा जा रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार ने GST लै ली है दरबार साहब तो। कि दरबार साहब गुरु रामदास के घर में लंगर बंद होया? कोई एक अद्धी दाल सब्जी घटी उत्थे? कोई उत्थे कोई इस तरह की कोई फर्क वाली गल किसी ने कदे वेखी है? इत्थे बजट गुरु का अपना है, इत्थे ऑडियंस गुरु की अपनी है, इत्थे संविधान गुरु का अपना है। लोड़ इस गल की है कि असीं इत्थे बैठ के कि गुरु गुरु कर सकते हैं, कि गुरु के सिद्धांत गुरु दीयां मर्यादा नूं सिख सकते हैं, जिहदी वड्डी चिंता होनी चाहिए है। GST नाल सानूं बहुता फर्क नहीं पैना,
ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਘੰਟੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਰਜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾ ਪੀ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਗਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 1984 ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਓ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਨਵਾਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖਿਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ 5 ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ।
परमात्मा जिहड़ा है उहदा निर्गुण स्वरूप है। सरगुण स्वरूप विच साडे कोल पोथी परमेश्वर का थान है। सरगुण स्वरूप दे विच साडे कोले गुरु नानक सन, साडे कोले 10 गुरु साहबान सन। निर्गुण स्वरूप दे विच परमात्मा दा कोई आकार नहीं है, पर सरगुण स्वरूप दे विच आप नारायण कला धार जग में परवरियो। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव पिता महाराज समझाउंदे ने, डिठी हब टंडोल हिकस बाज ना कोए। कहते मैं सारे नूं जदों टंडोल के वेख लिया ते समझ आ गई कि परमात्मा तेरे तो बिना संसार विच होर कोई नहीं है। आओ सज्जन तू मुख लग, मेरा तन मन ठंडा होए। सच्चे पातशाह तुसी मेरे ते कृपा करो, तुसी मैनू दर्शन दिओ। तेरे दर्शन कीतिया मेरे तन ते मन विच शीतलता आउंदी है। तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने। अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम अपने। ये उक्तियां जुगतियां वाला रस्ता आपां छड्ड दईए। हुण तां गुरबाणी दीयां पोथियां प्रिंट हुंदियां ने, गुटके प्रिंट हुंदे ने, बाणी दा शब्द लिख के थल्ले उहदी विधि लिख दित्ती जांदी है, उहदे थल्ले प्राप्तियां लिख दित्तियां जांदियां ने। आपां इसनूं इस पासे ना तोरीए। सच ये है कि ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिव लाए। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरै, जो हर हिरदै सदा वसाए। धर्म का विश्वास यह है कि जो तुसी धर्म वाले पासे तुरना है, तुहाडे जीवन में 4 अवस्थावां ने आउणा ही आउणा है। ये 9 निधियां भी आउणियां ने, 18 सिद्धियां भी आउणियां ने। 18 तरह की प्राप्ति होएगी तुहानूं। 9 प्रकार के दुनिया के खजाने थानू प्राप्त होणगे, पर किवें होणगे? जां ते नाम जपण नाल होणगे, जां सेवा करन नाल होणगे। हुण साडे विचों दोवें काम करन वास्ते कोई तैयार नहीं, बाणी पढ़न वास्ते तैयार नहीं। उहदा पुछी जांदे, ज्ञानी जी किन्ने पैसे भेज दिए, पाठ करा दिओ। पाठ कराउणा गुनाह नहीं है। पहली गल तो चंगी है भी तुसी आप करो। जे तुसी कहो भी सानू नहीं करना नहीं आउंदा, तो फिर घट्टो घट सुनना तो आउणा चाहिए ना। कि कहिए सुनना भी नहीं आउंदा जी, ये दलील नहीं प्रवान होनी भी असीं कहिए सानू सुनना भी नहीं आउंदा जी। असीं ये कहिए असीं सुनना नहीं चाहुंदे, ये गल ठीक है। साडे कोल वकत नहीं हैगा, ये भी गलत है। वकत बहुत है बंदे कोल। तुसीं इहदियां जिहड़ियां फजूल तरीके दियां जिहड़ियां ने अपनियां सरगर्मियां एक्टिविटीज बनाईयां ने, कदे वेखियो तुसीं? इन्हें हफ्ते च 2-2 दिन का समा नियत किया है फिल्म वेखण जाण दा। पुछ भी उहदे लई तेरे को 8-10 घंटे हैगे ने। होर पब क्लब की तू मैंबरशिप लई, उत्थे बैठ के तेनों गप्पा मारन दा तेरे कोल वक्त हैगा? रह रास दे 15-20 मिनट का टाइम कोई नहीं हैगा तेरे कोल। एक गल्लां दा आधार कोई नहीं हैगा। लोड़ इस गल दी सी कि सिख ने बाणी पढ़नी सी, अमृत वेले उठना सी, नितनेम करना सी, संगत करनी सी, सेवा करनी सी, किरत करनी सी, नाम जपना सी, वंड छकना सी। बाकी सब कुछ तो आपे ही तुरिया आउणा सी। जदों तू परमार्थ दे रस्ते ते, धर्म दे रस्ते ते तुरेंगा, गुरु दे रस्ते ते तुरेंगा, गुरबाणी दे रस्ते ते तुरेंगा, तो फिर यह भी चेता रखी सच्चे मार्ग चलदिया उस्तत करे जहान। नहीं तो तेनों अपने पोस्टर आप ही छपाने पैने ने। अपने पल्ले ही पैसे ला के किसी को कहना पैना, भरा जी थले अपनी फोटो ला दिओ, छपा दे मैं आपे देवांगा, लवा भी मैं आपे देवांगा, पर तेरा धन्नवाद होवेगा जे तू मैनू अपना नाम वरत लैण देवें तां। पर जदों सच दे मार्ग ते तुरना फिर तुहाडे इश्तिहार लोक लाउणगे, तुहानूं लाउण दी लोड़ नहीं पैनी। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब
कोई दुनिया तुहाडी जय जयकार करेगी। तुसी वाहिगुरु दा नाम जपोगे, ये चेता रखना, जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जे बाबा नंद सिंह होरा ने गुरु ग्रंथ साहब जी की पूजा की ते संसार ने उन्हां दी कीती। हुण असीं ईर्खा करदे, हुण ईर्खा दा की इलाज है? ईर्खा दा तां कोई इलाज नहीं हैगा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे, चित लाए मन चिंदिया फल पावना, हौमै विचों जाए। जिन्हें गुरु की सेवा करनी है, गुरु ने ओदी सेवा संसार तो कराउणी है। जिन्हां ने सतगुरु नूं पूजना है, उन्हां दी पूजा संसार ने करनी है, कराउणी गुरु ने है। पर यह जदों सानू समझ आ जाएगी कि आशिक आसा बाहरा मूह मन वड्डी आस। परमात्मा मैं तो सुने तेरा आशिक वो है जिन्हों आस कोई नहीं है। साडियां ते कंडीशनां शर्तां ये मुकदियां ही नहीं, मनशे मनोरथ ही नहीं मुकदे। असी बिल्कुल गुरबाणी का गुटका चुकन लई तैयार नहीं। अज तुसीं अमूमन किसी नूं वेख लिओ पाड़ी पढ़दे आ, उहदे हत्थ दे विच बाणी का गुटका होएगा ते उहदा एक नवा सरलेख है। ये की है? कहते जी ये दुख भंजनी है। भी पुछो दुख लाउणी बाणी भी हैगी है कोई? तुसीं दुख भंजनी बाणी बना लई, दुख लाउणी बाणी है कोई दुनिया विच? नहीं पाई। साडी मर्यादा ये सी कि सिख ने अमृत वेले उठ के सोदर आरती गावी है, अमृत वेले जाप उचारा। पहला जपजी का पाठ करना सी, फिर पंथ ने मर्यादा बना दी जाप साहब का कर दे, फिर असी सोईए पढ़ते, फिर चौपाई पढ़ते, आनंद साहब पढ़ते, सोदर पढ़ते, सोहला पढ़ते, फिर असी सुखमनी पढ़ लेंदे। फिर साडे कोले अकाल उस्तत है, साडे कोले शब्द हजारे, कुछ शब्द गुरु दे प्यार वालिया ने उस परमात्मा दे बिरहे वाले सानू बख्शिश कीते। कोदे वराग विच आके असीं बाणी पढ़ीए कि मन लोचै गुर दर्शन ताई, सहज पाठ कर दे। असी क्यों भुल गए कि दुख भंजन तेरा नाम जी, उस ओदा नाम ही दुख तोड़न वाला है। शब्द तुसी कोई भी पढ़ो, मैं तो हमेशा बेनती करदा भी आ शब्द आम पढ़ाया जाता है कि औखी घड़ी ना देखण देई। कोई विद्वान कोई महात्मा पुरख मैनू बैठा के समझा दे कि यह बेनती का शब्द है, तो जो सजा दवे मैं भुगतन लई तैयार हाँ। यह शब्द भरोसे का है, यह बेनती का शब्द ही नहीं है। शब्द यह है कि औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले, ये तो भरोसे का शब्द है। हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतिपाल है, यह भरोसा है कि परमात्मा ने कदे अपने नू औखी घड़ी वेखण नहीं दिती, वो नहीं दिंदा। असी कहने तू ना वेखण दवी, ये बेनती का शब्द नहीं, ये तो भरोसे का शब्द सी कि जिहड़े तेरे हो गए तू कदे उन्होंने औखी घड़ी नहीं वेखण दिती। पर कदों जदों प्रभ स्यो लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा। जदों तू कवेगा आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा मीत, ये मेरा मित्र है, फिर तू भी याद रखी भी तेनों औखी घड़ी नहीं वेखण देगा। जदों औखा समा आवेगा अगे परमात्मा खड़ा होएगा, तेरे नाल खड़ा होएगा, उहदा हथ तेरे सिर ते रहेगा। तू आरे ते भी चीरिया जावेगा, तू चरखड़ी ते भी चढ़ जावेगा, पर तेरियां अखां विच आंसू नहीं होणगे। क्योंकि वो जिन्हों असी पीड़ा महसूस करते हैं वो वाहिगुरु सच्चे पातशाह आप सिर ते हाथ रखता है। आशिक आसा बाहरा मूह मन वड्डी आस,
परमात्मा मैं सुनिया भी आशिक वो हुंदा है जिन्हों आस कोई ना होवे, जिहड़ा कोई इच्छा ना रखे। देखो प्यार तो इदां ही हुंदा है। मेरी बेनती है कि प्यार ते विहार विच एक फर्क है। जिहड़ा तुसीं कापी पैन लैके करदे हो वो विहार है, क्योंकि उहदे च एक रकम भी अगे पिछे होगी तो विहार खत्म हो जाएगा। प्यार जे तुसीं कापी पैन चुक लई तो प्यार भी खत्म है। प्यार दे विच लेखा जोखा नहीं हुंदा, गिणतियां मिणतियां नहीं हुंदियां, उहदे विच जमा घटाओ नहीं हुंदा। आशिक ये ना आखीए जे लेख्या वरते सोए। लेखिया विच वरतन वाला प्यार करने वाला किवें हो सकता है? बस ते चढ़े, बस तो उतरे, रोटी खाधी, चाह पानी पीता तो उत्थे कापी पैन खोल ली, दस बई तू किन्नियां बुरकियां खादियां, मैं किन्ने घुट चाह पीते, तेरे किन्ने पैसे बने, तू किन्ने पकौड़े खादे, मैं किन्ने खादे। हुण ये तुसीं की कहोगे ये दो बंदे प्यार वाले ने? ये तो वड्डे बिजनेसमैन लगते हैं भी उस वेले ही उन्होंने अपनियां रकमां मिलाउणियां शुरू कर दित्तियां, कलमां सीधियां करनियां शुरू कर दित्तियां। प्यार दे विच इदां नहीं हुंदा। आशिक वो है जिहड़ा लेखे तो बारा है, आस तो बारा है। पर अगों फिर गुरु अर्जन देव पिता कहते हैं मूँह मन वड्डी आस, पर परमात्मा मेरा की बनेगा? मैं तो जदों भी तेरे कोल आउणा आसां ही हुंदियां ने, आ भी हो जाए, वह भी हो जाए, आ भी कर दे, आ भी कर दे, आ काम भी मेरा हो जाना चाहिए। आस निराशा हिक तू, हाँ बल 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 गई आस। पर परमात्मा मैनू समझ आ गई, मेरिया आसा मटाउण वाला भी तू है। आपां तां कहने भी आसा पूरियां वो करदा है। हुण आसा दी वार नूं सुणाउण पढ़ाउण लई एक नवीं खोज आ गई है, कहंदे जी आसा पूरियां करदी है। असीं ते सुणिया सी भी परिवार विछोड़ा होने तो पहला भी आसा दी वार पढ़ी गई, गाई गई। हुण कहंदे जी आसा पूरियां कर दो। सो उत्थे गुरु कलगीधर पिता दी किहड़ी आस सीगी भी परिवार विछोड़ा हो जाए? असीं क्यों अतकथनियां करदे आ? क्यों असीं इदां दीयां गल्लां जोड़दे आ? क्यों बोलण वास्ते ही बोली जाने? असीं भी बोलना ही है तो बोल लईए। असीं ये साडी नित चिरे है, साडी मर्यादा बन के दित्ती है सानू सतगुरु ने। परिवार विछोड़े तो पहला भी जिहड़ा आसा दी वार दा कीर्तन होया है वो इस गल दा प्रमाण है कि जिंदगी दे हर हालत विच इस नितनेम नूं छड्डिया नहीं जा सकदा। उहदा मैसेज कुछ होर सी, उहदा स्नेह ही कुछ होर सीगा। असीं लैके अपने धर्म नूं किते होर खड़ा कर देण लगे हैं। परमात्मा मैनूं हुण समझ आई है कि ये जिहड़ियां आसां ने इन्हां नूं भी तूं पूरा करदा है। धर्म की दुनिया में आउण दा मैनूं जिहड़ी बेनती मैं आप जी नूं करां समझ आई वो इहो ही है कि साडियां सारियां लोड़ां पूरीआं नहीं हुंदियां, पर गुरु सानूं एक ज्ञान दिंदा है, वो दसदा भी तेरियां इन्नियां लोड़ां है ही नहीं जिन्नियां तू बना के बैठा होया। तेरे जीवन दीयां इन्नियां लोड़ां है नहीं जिन्हें घर दी तू आस करके बैठा है, जिन्नियां गड्डियां दी, जिन्ने कारोबार दी, जिन्नी धन दौलत दी। तू तो पूरी जिंदगी वरत भी नहीं सकता। असीं कहने कई बारी कहते इहदे कोल इन्ने पैसे ने, ये तो अग लावे नहीं सड़दे, वो बंदा भी इकट्ठे करी जाता है। पैसा तो खर्चण लई चाहीदा है ना, पर जिंदगी इन्नी छोटी है, पैसे तेरे कोल इन्ने ज्यादा ने तो तू खर्चे भी तां भी तेरी जिंदगी च नहीं खर्चे जा सकते। पर बद फैलियां ना करी, फिर खर्चे जाणगे। अमल प्रशादे दा करी, तन ढकण वास्ते कपड़ा पावी, फैशन परस्ती ना करी। जे पैसे मुक जाण ताकि सच्चे पातशाह के घर उलामा दे दी भी दाता मेरे पैसे घट गए ने। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनण खान, ये सारियां तेरियां लोड़ां उन्हें पूरियां कर दित्तियां ने। सतगुरु मेहर करन, समा इजाजत नहीं दिंदा कि आप इस तो होर अगे जाके कोई गल कर सकीए। वक्त की समाप्ति है। अज का दिन बहुत वड्डी साडे विच एक पीड़ा का एहसास भरदा है। बड़ा औखा प्रबंध मिले सानू गुरु घर की सेवा का। हमेशा इसनूं मुख रख के असीं
ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੂ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਭਾਵ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਟੁੱਟੇ। ਬਹੁਤ ਸਿਦਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ, ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਘਟਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।